وعلیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اسٹریٹجیز کچھ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کوئی بھی کنٹری، یہاں ہم پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ جیسے ہمارا لاسٹ ٹاپک رہا کہ کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو پاکستانی یا پاکستان اکنامک گروتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان کی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز یا میئرز لیے جا سکتے ہیں جن کی بیسس پہ آپ اکنامک گروتھ کو، پہ لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تھا اکنامک ڈیولپمنٹ، کون کون سے فیکٹرز اکنامک ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو پاکستان، اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز یا کون سے ایسے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں جس سے اکنامک گروتھ یعنی گوڈز اور سروسز، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جی ڈی پی یا آؤٹ پٹ کو امپروو کیا جا سکتا ہے، انہینس کیا جا سکتا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کی کہ یہ سبجیکٹ ہمارا ایک جنرل سبجیکٹ ہے، تو یہاں آپ ضروری نہیں ہے کہ یہی بات کریں، آپ اور سرچ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو ایکسٹرا مٹیریل کافی ملے گا، تو آپ ضرور یہاں سے اس پوائنٹ سے یا جو میں پوائنٹ شیئر کروں ان سے ہٹ کے بات ضرور کر سکتے ہیں۔ اب سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ کوالٹی فرسٹ دیکھیں، یہ وہ پوائنٹس میں لے رہا ہوں جو جنرل ہیں، ایزی ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہو کہ لیس کاسٹلی ہیں، تو اکنامک ہیں۔ ان پوائنٹس کے ذریعے، ان اسٹریٹجیز کے ذریعے پاکستان اپنی اکنامک گروتھ کو ضرور امپروو کر سکتا ہے۔ فرسٹ ہے کوالٹی ووکیشنل ٹریننگ زونز۔ آپ دیکھتے ہو کہ ہمیں جو ٹریننگ اینڈ ووکیشنل جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کے، انسٹیٹیوٹس جو ہیں جہاں یوتھ کو ٹریننگ تو دی جاتی ہے، ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، لیکن اس کے فردر آپ کو کوئی خاطر خواہ اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ پھر انٹرپرینیورشپ ہی تو نہیں ہے، آگے فیسلٹیز نہیں ہیں، اسکوپ نہیں ہے اس کا، آپ کو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ مارکیٹ نظر نہیں آتی کہ ایک بندہ ووکیشنل ٹریننگ تو لے لیتا ہے، یا ایک بندہ پروفیشنل تو بن جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ الیکٹریکل ہو، چاہے وہ جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ دستکاری ہے یا امبرائڈری ہے یا ڈریس ڈیزائننگ ہے، تو یہ کچھ آرٹس ہیں جو سکھائی جاتی ہیں، ووکیشنل ٹریننگز دی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی پھر بعد میں فنڈنگ نہیں کی جاتی کہ اگر ایک یوتھ یا ایک انڈیویجول یا ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے کچھ اس نے سیکھ لیا، یا ایک لے مین یا ایک کامن پرسن یا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ لیس ایجوکیٹڈ، سیکھ تو لی ہے اس نے، لیکن فردر اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی اس کو انویسٹمنٹ یا اس کو کوئی لونز ایسے نہیں دیے جاتے کہ وہ کہیں اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر لے، وہ کہیں ایز اے انٹرپرینیور اپنا بزنس اسٹیبلش کر لے، جس کی وجہ سے یہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ اس کا کوئی خاطر خواہ آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا، کوئی بھی آپ کو آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہوتا، اور یہ پھر ٹریننگ ضائع جاتی ہے۔ تو ہم کافی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو اس کی ٹریننگ تو ضرور لے لیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فردر آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا۔ تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوالٹی ووکیشنل ٹریننگ زونز اگر اسٹیبلش کر لیں جہاں ووکیشنل ٹریننگز دی جائیں، ایسے انسٹیٹیوٹس ہوں، اور فردر ان ووکیشنل زونز کو وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو لیا جا سکتا ہے، اسکلفل ٹرینرز لیے جا سکتے ہیں، انسٹرکٹرز لیے جا سکتے ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنی یوتھ کو جو ان امپلائڈ ہیں، جو فار ایگزامپل جاب لیس ہیں، جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو آرٹ کو اچھا جانتے ہیں، آرٹ میں جن کا انٹرسٹ ہے، تو فرسٹ پوائنٹ تو میں نے یہ کچھ رکھا آپ کے سامنے کہ کوالٹی ووکیشنل ٹریننگ زونز ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ اپنی جی ڈی پی کو، اکنامک گروتھ کو، کوئی بھی کنٹری یا لائک پاکستان امپروو ضرور کر سکتا ہے۔ تو جیسے آج دیکھ لیں پاکستان میں موبائل فونز جو ہیں، اسمارٹ فونز، ان کے ہمیں فیکٹریز، اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی۔ اگر پاکستان میں اس کی مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے تو جو موبائل فون آپ اتنا مہنگے موبائل فون فار ایگزامپل پرچیز کرتے ہو 20,000 یا 30,000، یہی موبائل فون آپ کو 10 to 8,000 پہ ضرور مل سکتے ہیں، اور یہ 2019 کی رپورٹ ہے، 2019 کی ریسرچ ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ سمری ہے جو گورنمنٹ کو پریزنٹ کی گئی۔
IT मिनिस्ट्री जो उनको प्रेजेंट की गई। तो क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग जोन्स शुड बी एस्टेब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर यूथ एज दे कुड लर्न टेक्निकल स्किल्स इन डिफरेंट cadres and trades. Government should ensure those vocational zones that how they are operating and functioning. One of the primary way of enhancing economy is to support entrepreneurship and create new avenues for growth by guiding the youth. Before everything else, the government ought to overcome the energy crisis. दूसरा पॉइंट आप एनर्जी क्राइसिस पे भी आ रही हैं। पहला पॉइंट हमने रखा कि पहली स्ट्रेटजी ये हो कि आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वोकेशनल ट्रेनिंग जोन्स डिसाइड कर लें। वो डिस्ट्रिक्ट डी खान है, वो पहाड़पुर है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कर रहा हूँ। तो ऐसी जो इलाके हैं जहाँ ज़्यादा आपको लेबरर डेली वेजर्स नज़र आते हैं, तो वहाँ आप उनको पार्ट टाइम, वो फीमेल भी हो सकती हैं, वो मेल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेल है, वो अगर डेली वेजर है और कभी उसका गुजारा होता है, कभी उसको वेज मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो आप उसको अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट उसे ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, तो इससे ज़रूर आपको उस लोकेलिटी में एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट उस लोकेलिटी को मिल पाएंगे, जिससे GDP ज़रूर इम्प्रूव होती है, GDP में खातिर खा इजाफा होगा। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि आप एनर्जी क्राइसिस को ज़रूर कंट्रोल करें। ये इसके लिए ज़रूर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। एनर्जी क्राइसिस कंट्रोल करने के लिए आज जैसे देखा जाए तो आप सब्सिडी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी पे, या जो सोलर पावर है इस पे अगर सब्सिडी दी जाए, अगर इसकी कॉस्ट कम कर ली जाए, या गवर्नमेंट इसमें लोगों को सपोर्ट करे, या गवर्नमेंट इसके लिए लोन प्रोवाइड करे, तो आप देख सकते हो कि वो चाहे फार्मर हो, वो एक किसान हो, वो एक विलेज सेक्टर हों, विलेज एरियाज़ हों, लोकेलिटीज़ हों, तो इससे काफ़ी खातिर खा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो दूसरा स्टेप जो लिया जा सकता है जिससे ग्रोथ बढ़ सकती है, जिससे GDP बढ़ सकती है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर आप कह सकते हो आउटपुट बेहतर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इलाके जहाँ जो बारानी हैं, जहाँ नहरी सिस्टम नहीं है, तो वहाँ ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूबवेल के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप लोड शेडिंग में ऐसी विलेजेस जा रही हैं या सिटीज़ जा रही हैं, तो वहाँ फिर आप सोलर पैनल या सोलर एनर्जी या इसकी कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड करके फिर वही जो आज बंजर इलाके हैं वो आपको आउटपुट देंगे, जिससे ज़रूर आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि पाकिस्तान खातिर खा प्रोडक्शन दे सकता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमने स्ट्रेटजी ली कि पाकिस्तान शुड इन्हेंस एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस। देखें, एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस को, एक्सपोर्ट क्वालिटी को, ISO को फॉलो करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान स्टैंडर्ड को फॉलो करना, डोमेस्टिक स्टैंडर्ड को फॉलो करना, ये तो डिपेंड करते हैं आपकी गवर्नमेंट किस तरह पॉलिसी देती है और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करवा पाती है। लेकिन एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस तब इम्प्रूव होगी जब आप क्वालिटी अपनी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फर्दर फिर उनको आप एक्सपोर्ट करेंगे। जब आप अपने ही सेक्टर को, अपनी ही सेक्टर की डिमांड, अपनी ही लोकेलिटी की डिमांड फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो कैसे आप एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। तो यहाँ ज़रूरी है कि जैसे अभी मैंने बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप को जब इंक्रीज़ किया जाए, जब लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जब लोग छोटे बिजनेसेस से जो उनके आइडियाज़ हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि वो अपने आइडियाज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर मॉडलिंग में आइडियाज़ को ला पाएँ और बिज़नेस इंस्टॉल कर पाएँ, और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट अगर प्रोवाइड की जाए, तो आप देखते हो कि यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्रूव हो सकती है, और आपकी जो कंट्री की जो डोमेस्टिक नीड है या लोकेलिटीज़ की जो डोमेस्टिक नीड है, वो डोमेस्टिक आपका मैन्युफैक्चरर ही फिर मुकम्मल कर पाएगा, आपको आउटपुट दे पाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो सकती है कि बाय रिड्यूसिंग कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस। पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट करे कि कास्ट ऑफ बिजनेस को मिनिमाइज कर दिया जाए। आगे पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं कि टैक्स रिडक्शन दे दी जाए, टैक्स फ्री जोन्स लगा दिए जाएँ लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि हेल्थ सेंटर्स की तरफ आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, वहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर दिए जाए, एडवांसेस प्रोवाइड किए जाएँ। तो अल्टीमेटली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कास्ट ऑफ एक एंटरप्रेन्योर, अगर एक नया बंदा एक स्टूडेंट अपना सेटअप इंस्टॉल शुरू कर रहा है, तो उसको कुछ टाइम के लिए आप टैक्स फ्री कर लें, ताकि वो टैक्स फ्री होगा तो उसको कुछ चार्जेस से, कुछ पेनल्टी से बचेगा, तो अल्टीमेटली वो एक अच्छा बिजनेस इंस्टॉल कर पाएगा, और फिर यहीं से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और जॉब फैसिलिटीज़ भी आएंगी, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़रूर खातिर खा इजाफा होगा।
Pakistan should adopt strategic approach to increase its exports in the neighboring markets and underline the need of holding single country. As a result of overall economy dilemma, the common men and the women in the country are facing economic uh, def- def- deficiency and deprivation. तो ये अब आपके पास पॉइंट है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। आप देखें चाइना को, आपने देखा कि उसने एशिया को कैप्चर किया है। जब एशिया कैप्चर हो गया तो अब एशिया में आप पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, फॉर एग्जांपल जो भी एशियन कंट्रीज कैप्चर करने के बाद उसने पहले नेबर्स जो थे उसको कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ कास्ट कम पड़ती है, यहाँ एक्सपोर्ट कास्ट जो उसकी वो कम उससे पड़ती है, यहाँ वो नियरेस्ट आज सी पैक आप देख लें तो उसको वो रूट उसको आप आसानी हो जाएगी ज़्यादा, जो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि फ्रेट पे कर रहा है या वो वॉयज जो एक्सपेंस हम कहते हैं वॉयज कास्ट है वो पे की जा रही है, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल की हो जाएगी चाइना की। तो इससे आप देख रहे हो कि ये आप नेबर्स को कैप्चर करें, अपने नेबर्स को मोटिवेट करें, इन्फ्लुएंस करें, ताकि आपकी एक्सपोर्ट जो है पहला टारगेट आपके नेबर्स होने चाहिए। तो ये सेकंड स्टेप लिया जा सकता है जिससे ज़रूर इकनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हो सकती है। इसी तरह थर्ड जो स्ट्रेटजी हो सकती है स्ट्रेटजिक इमिग्रेशन रिफॉर्म्स। आज आप पाकिस्तान में देखते हो इमिग्रेशन रिफॉर्म्स हमें नज़र नहीं आते। आप अमेरिका को देखें इमिग्रेशन रिफॉर्म्स किए गए, आप इंग्लैंड को देखें इमिग्रेशन रिफॉर्म्स आपको नज़र आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की इमिग्रेशन रिफॉर्म्स नज़र आते हैं। और तो छोड़ें चाइनीज़ को देख लें कितने स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं एनुअली फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरह आप और ऐसे देख लेते हो यहाँ इमिग्रेशन रिफॉर्म्स हैं कि अगर एक पर्सन जाना चाह रहा है, वहाँ जाके जॉब करना चाहता है, वहाँ स्टडी करना चाहता है, उसे कार्ड्स इशू हो जाते हैं, उसे इमिग्रेशन रिफॉर्म्स हैं वहाँ कि आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो हम आपको सिटीज़नशिप दे देते हैं, और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है कि डॉलर फॉर एग्ज़ाम्पल $5 लाख की इतनी इन्वेस्टमेंट अगर कर ली जाए और अगर आप 10 जॉब्स क्रिएट कर लें तो फिर आप किस रैंक में आ जाते हो, किस शेड्यूल में आ जाते हो, क्लासेस में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। इसी तरह टाइम टू टाइम क्लासेस इंक्रीज आप क्लासेस पास करते जाते हो और अल्टीमेटली आपको ग्रीन कार्ड्स हैं और डिफरेंट फॉर एग्ज़ाम्पल सिटीज़नशिप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। अगर ये रिफॉर्म्स कर लिए जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा रिफॉर्म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल H1B वीज़ा है, तो ये रिफॉर्म्स अगर कर लिए जाएँ तो अल्टीमेटली वहाँ से भी आपको काफ़ी खातिर खा GDP में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि जब आउटसाइडर आता है तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट लाएगा, या अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करता है, अपनी एक्सपर्टीज़ इन्वेस्ट करता है, तो अल्टीमेटली एक कंट्री की ग्रोथ होती है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक इमिग्रेशन रिफॉर्म्स कि आप ओवरसीज़ को आउटसाइडर्स को ज़रूर फैसिलिटेट करें। एज अदर कंट्रीज एग्रेसिवली रीच आउट टू स्किल्ड इमिग्रेंट्स वी हैव मेड इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। हमारा जो है यहाँ फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उससे काफ़ी हर्डल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं कि अगर एक फॉरेन एंटरप्रेन्योर आता है आपकी कंट्री में, एंटरप्रेन्योर अब आप आई थिंक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर जब आता है तो उसको यहाँ बिज़नेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है, तो उसको काफ़ी यहाँ हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है। वो आपके टेररिज्म कह सकते हो, वो आप और काफ़ी ऐसी इश्यूज़ हैं जो या वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सोशल इश्यूज़ हैं, वो टेक्निकल, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स एक जो फॉरेन है ओवरसीज़ है उसको यहाँ रोक देता है, तो अल्टीमेटली यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती। तो इसके लिए भी इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है, जिससे आप एक खातिर खा इजाफा दे सकते हैं GDP में। Our refusals to let more highly skilled immigrants is costing jobs, delaying economic recovery, and harming our international leadership in innovation and entrepreneurship. यहाँ जैसे बात हो रही है, मैंने आपको कहा कि जब ये हार्मिंग आप कर रहे हो, लीडरशिप को आप रोक रहे हो, इनोवेशन को रोक रहे हैं यहाँ से आप, क्योंकि जब इंटरनेशनल कोई भी ओवरसीज़ को आप या कंपनीज़ को या फर्म्स को आप फैसिलिटेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटेट करेंगे, सहूलियात देंगे, आपके पास कोई ऐसे आप जैसे स्टार्टअप एक्ट दे दें, जैसे ड्रीम एक्ट हैं, ऐसे अलाउ कर दें, तो वहाँ से इजीली आप देखते हो कि लोग फिर बिज़नेस इंस्टॉल करते हैं, चेक एंड बैलेंस हो, तो एक अच्छा आउटपुट नज़र आता है। जैसे यहाँ मैं आपके सामने कि यूनिवर्सिटीज़ शुड पास द ड्रीम एक्ट टू अलाउ लॉ अबाइडिंग पीपल। अब ड्रीम एक्ट में मैंने कहा स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जैसे आउटसाइडर्स आपकी कंट्री में आता है तो वो काफ़ी कुछ आप कह सकते हो कि आपकी जो यूथ है, इस कंट्री की जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से वो स्किल्स
ان میں وہ سکلز آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں سے کافی کچھ سیکھتے ہیں، ان کے کلچر کو سیکھتے ہیں، کیوں وہ کنٹریز ڈیولپڈ ہیں، کن بیسس پہ ڈیولپڈ ہیں، یہ کافی کچھ یوتھ آپ کی سیکھ پاتی ہے، اور اس سے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی یوتھ یا آپ کی جو نیشنلز ہیں کسی بھی کنٹری کے یا پاکستانی، تو وہ کافی کچھ وہاں سے ایکسپیرینس کر پاتے ہیں۔ اسی طرح دا اسٹارٹ اپ ایکٹ از این ادر کامن سینس میئرز دیٹ وڈ کریٹ گرین کارڈ فار امیگرینٹس ہو رجسٹرڈ تھرو اے بزنس اینڈ میٹ امپلائمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینچ مارک۔ اسی طرح آپ اگر امیگرینٹس کو رجسٹر کرنے کے لیے سہولیات دیتے ہو یا ایسے ایکٹ کوئی آپ ریفارمز لاتے ہیں اپنی کنٹری میں، تو پھر ایک انویسٹمنٹ بینچ مارک سیٹ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہو کہ لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں گے کیونکہ ان کے لیے سہولیات ہیں، ان کو ویزا کی سہولت ہے، ان کو رجسٹریشن کی سہولت ہے، ان کو بزنس اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو وینچرنگ کی آسانی ہے۔ تو جب یہ آسانیاں پیدا کی جائیں تو پھر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ وی شوڈ ورک ٹو ایکسپینڈ اینڈ ریموو دا کاسٹ caps on H1B visa and fix the EB5 پروگرام۔ تو یہ پروگرامز کچھ ہیں جو اسٹریٹجیز لی جا سکتی ہیں کہ آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہو کہ اگر یہ ہمارے نیبرز جو ہیں اگر یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ سہولیات ہیں، وہ ویزا فری ہو سکتے ہیں، وہ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہو کہ ان پہ ایکسائز ہیں، ان پہ جو ڈیوٹیز ہیں، ان کو کافی حد تک اگر کم کر دیا جائے تو یہاں سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ بھی لیا جا سکتا ہے ٹیکس کٹ اینڈ ٹیکس ریبیٹس۔ آلریڈی یہ پوائنٹ آپ پڑھ چکے ہیں ٹیکسیشن مینجمنٹ میں کہ اگر ٹیکس ریبیٹ ٹیکس سہولت دے دی جائے، ٹیکس کٹس سہولیات دے دی جائے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ انرجی کرائسس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سولر فار ایگزامپل مینوفیکچرنگ جو ہے پاکستان میں ایسے پینلز یا اس کی مینوفیکچرنگ یہ پروڈکشن سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آپ آؤٹ سائڈرز ہیں یا چائنیز ہیں جو بھی فار ایگزامپل انڈسٹریز ہیں ان کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، ٹیکس ریبیٹس دیں گے، ٹیکس کٹس دیں گے، تو انڈسٹریز آپ کی کنٹری میں لگیں گی، مینوفیکچرنگ آپ کی کنٹری میں ہوگی، وہیں سے جاب یعنی امپلائمنٹ ختم ہوگی اور جی ڈی پی آپ کی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بڑھے گا، آپ کی اکنامک گروتھ میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو ٹیکس کٹس اینڈ ٹیکس ریبیٹس آر ڈیزائن ٹو پٹ مور منی بیک انٹو دی پاکٹس آف کنزیومرز۔ آئیڈلی دیز کنزیومرز اسپینڈ اے پورشن آف دیٹ منی ایٹ ویریس بزنس، جسے ہم کہتے ہیں پلگنگ بیک آف پروفٹ، کہ آپ پہ جب ٹیکس کم ہوگا، کم ٹیکس لگے گا تو وہی پیسہ دوبارہ کنٹری میں انویسٹ ہوگا، دوبارہ بزنسز میں انویسٹ ہوگا، اور آپ دیکھتے ہو کہ بزنسز جو ہیں وہ ڈیولپ اور امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک اپنی روٹ فکس کر پاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس تھا کہ ریونیوز بھی انکریز ہو سکتی ہیں، کیش فلو اینڈ پروفٹ۔ ہیونگ مور کیش مینز کمپنیز ہیو دا ریسورسز ٹو procure capital, improve technology, grow and expand. All of these actions increase productivity, which grows the economy. Tax cuts and debates. Opponents argue allow the consumers to stimulate the economy themselves by imbuing it with more money. تو یہ آپ کے پاس بہت ایزی پوائنٹ ہے کہ ٹیکس ریبیٹس دیے جائیں، ایمنیسٹی سکیمز دی جائیں، ٹیکس میں سہولیات دی جائیں، تو آپ دیکھتے ہو وہاں سے بھی کافی خاطر خواہ بہتری آتی ہے کہ ایک انٹرپرینیور بزنس انسٹال کر پاتے ہیں۔ ادروائز انیشیل سٹیجز پہ، پریلیمنری سٹیجز پہ یہ تمام ہرڈلز ایک انٹرپرینیور کو بزنس جو اس کے ڈیزائرڈ یا ایکسپیکٹڈ بینچ مارکس ہوتے ہیں اچیو کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسٹیمولیٹنگ دا اکانومی ود ڈی ریگولیشن، یہ بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کریں اپنے آپ فائنینشیل ایکٹس کو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو۔ ڈی ریگولیٹ مینس کہ آپ ریلیکسنگ رولز دیں، آپ کے پاس اگر ٹف رولز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ کی میں نے اگزامپل رکھی اس سلائڈ میں، 1980 کے بعد آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے ریگولیٹ کیے اپنے رولز کو، فائنینشیل رولز کو، فائنینشیل ایکٹس کو۔ پاکستان میں آج دیکھ لیں کہ یو کے ایکٹ ہمیں نظر آتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم اور انگلش ایکٹ نظر آتے ہیں جن کو آج تک پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہیں۔ تو اگر ان میں بہتری لائی جائے، آپ کمپنیز آرڈیننس اور پارٹنرشپ ایکٹ بھی پڑھتے ہیں، تو ان میں اگر بہتری لائی جائے، ان میں امپرومنٹس لائی جائیں، ڈی ریگولیٹ کیا جائے، ٹائم ٹو ٹائم آپ سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اپنی اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر آسانیاں پیدا کریں تو الٹیمیٹلی یہاں سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے۔ ڈی ریگولیشن از اے ریلیکسنگ آف رولز اینڈ ریگولیشنز امپوزڈ آن این انڈسٹری اور بزنس۔ It became a centerpiece of the economics in the United States under the Reagan administration in the 1980s, when the federal government deregulated several industries, more notably financial institutions. Many economists credited
regains regulations with the robust economic growth that characterized the US during most of the 1980s and 1990s. तो रेगुलेट जब रूल्स ही रेगुलेट अब आसान कर लिए जाएँ लोगों के लिए, जो कल्चर है उसके देखते हुए डीरेगुलेशन की जाए, जो आपका इकोनॉमिक लेवल उसको देखते हुए डीरेगुलेशन की जाए, जो आपके स्किलफुल लोग हैं, जो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जैसे आपके ग्रोथ का रेट है, इनको देखते हुए अगर रूल्स को डीरेगुलेट किया जाए, उसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ या जो खामियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए, अमेंडमेंट्स की जाएँ, तो ये भी हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो आपके फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फ्रेंचाइजेज हो सकती हैं, इनके लिए रूल्स को अगर डीरेगुलेट किया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है जीडीपी में। इसी तरह एक और पॉइंट है कि यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्पॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। आज आपने देखा कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कह सकते हो कि जो ये इंडस्ट्री है आपके सामने, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो उसको जब जितना आप आसानियाँ देंगे, वहाँ फैसिलिटेट करेंगे, वहाँ सब्सिडीज़ देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आपका जो लोअर क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेजर है, डेली वेजर है, उसको खातिर खा वहाँ से जॉब्स मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आने से इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। यानी जितना बेस्ट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके आप कह सकते हो कि जैसे मैंने अभी बात की, तो गवर्नमेंट जो अब अमेंडमेंट्स लाई हैं या नई गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो दी है कि यहाँ से आप देखते हो कि जैसे मैंने कहा कि लेबरर जो है आपका डेली वेजर जो है उसको क्योंकि जॉब लेस है और उसको एक परमानेंट जॉब मिल सकती है, इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपर्स यहाँ फॉर एग्जांपल डिफरेंट फार्म्स इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉरपोरेशंस बना सकते हैं, तो वहाँ से आप देखते हो कि इजीली लोगों को एक जॉबलेस जो लोग हैं, जॉबलेस जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक जो एक आपका लेमैन या एक कॉमन पर्सन है जो अनपढ़ है, उसकी तरफ अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक यहाँ से फैसिलिटेट हो सकता है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बेहतरी की ज़मानत है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अकर्स व्हेन अ लोकल स्टेट और द फेडरल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी टू बिल्ड और रिपेयर द फिजिकल structures and facilities needed for the commerce and society as a whole to thrive. Infrastructure includes roads, bridges, ports, and the sewerage systems. Economists who favor infrastructure spending as the economic catalyst argue that having top-notch infrastructure increases productivity by enabling businesses to operate as efficiently as possible. ये अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है आपकी उसको अगर फैसिलिटेट करें, वहाँ टैक्सेस कम कर दिए जाएं, वहाँ टैक्स में कमी लाई जाए, जैसे आज गवर्नमेंट कह रही है कि जितना भी इन्वेस्ट किया जाएगा उसको बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और नहीं पूछा जाएगा कि ये आपका सोर्स क्या था और कहाँ से ये पैसा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में डेवलपर्स इन्वेस्ट अब कर सकते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और जो डेली वेजर्स हैं या मज़दूर तबका है या आपके इंजीनियर्स हैं या आप कह सकते हो सिविल स्टाफ है, तो वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी और इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। इसी तरह पॉइंट मेरे सामने कि आप फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंशन ला सकते हो, एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी, कटिंग टैक्सेस टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम एंड इनकरेज स्पेंडिंग। अब इनकम टैक्सेस आप टैक्सेस कंट्रोल करने से स्पेंडिंग को इनकरेज कर सकते हैं। हाउएवर लोअर टैक्सेस विल इंक्रीज द बजट डेफिसिट एंड विल लीड टू हायर बोरोइंग। टैक्सेस जब कम किए जाएं तो बजट डेफिसिट काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और बोरोइंग भी यहाँ आप देखते हो कि लोग भी बोरो भी करेंगे, क्योंकि बोरोइंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट होगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर यहाँ कम होगा, टैक्सेस कम होंगे, तो ये आपके पास फिजिकल पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट लाना, फाइनेंशियल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट उसमें उसको लोअर लेवल जो हमारे एक आज यूथ है या आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं या पब्लिक है, उनको देखते हुए अगर या इंटरप्रेन्योरशिप को देखते हुए अगर टैक्स फैसिलिटीज़ दी जाएँ, टैक्स रिबेट दी जाएँ और फिजिकल पॉलिसी जो है उनमें टाइम टू टाइम उसकी इवैल्यूएशन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन में और फार्मूलेशन में अगर इम्प्रूवमेंट लाई जाए, तो ये आप काफ़ी हद तक
इकनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरह एक्सपेंशरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी के साथ ही हम लिंक कर सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है आपका, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये अगर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइम टू टाइम इसमें इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनमें कट दिए जाएं, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल किए जाएं, इंटरेस्ट रेट श्रिंक किए जाएं, मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई ऑफ मनी हो गई, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हो, क्वालिटी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, अगर इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रेटजीज़ टाइम टू टाइम बेस्ट स्ट्रेटजीज़ ली जाएं, स्टेप्स लिए जाएं, तो इससे भी काफ़ी हद तक इकनॉमिक ग्रोथ कंट्रोल हो सकती है। इसी तरह स्टेबिलिटी ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी ऑफ रूल्स रेगुलेशन और स्टेबिलिटी कि आप स्टेबिलिटी रखें अपने रूल्स में। A key function of the government is to provide economic and political stability which enables the usual economic activity to take place. Uncertainty and political tension can discourage investments and economic growth. जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, जब आपको गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स का, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन का, पॉलिसीज़ की कोई किसी को समझ ना आ रही हो, कि कभी भी कोई अनसर्टेनिटी है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो वहाँ से भी लोग बिजनेस नहीं लगा पाते, वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो काफ़ी वीकन होती है। एंटरप्रेन्योर्स फॉर एग्जांपल मोटिवेट नहीं होते, आउटसाइडर नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टमेंट को यहाँ से डिस्करेज होती है। पॉलिटिकल टेंशन जो है या अनसर्टेनिटी ये यहाँ से नज़र आ रही होती है, तो ये भी इकनॉमिक ग्रोथ को डिक्लाइन करते हैं, वीकन करते हैं। जीडीपी डिक्लाइन होती है, जो पाकिस्तान के हालात रहे, जो जिनकी वजह से जीडीपी जो है टाइम टू टाइम टारगेट्स अचीव नहीं हो सके। तो ये टॉपिक आज हमने लिया। आज हम फर्स्ट वीक जो हमारा वीक तो यहाँ हमारी आउटलाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम खुद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज हम ऐसा क्लियर कर लें कि फ़र्स्ट सेगमेंट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। मैं आउटलाइन शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चरल इश्यूज स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान इकॉनमी में पाकिस्तान कंट्री को या पाकिस्तान को कौन कौन से एग्रीकल्चरल इश्यूज़ का सामना है, जो इकनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान हैं, जिनसे इकॉनमी पाकिस्तान की डिवेलिएट हो रही है, इकॉनमी पाकिस्तान की डिस्टर्ब हो रही है, और किस तरह इस कौन सी पॉलिसीज़ या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जनरल टॉपिक हैं, पहले भी मैंने बात की, हम लिख सकते हैं, इजीली बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपना ही चैनल बनाए हुए जहाँ आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे FSA का सब्जेक्ट भी है आपका और इकनॉमिक इशूज़ ऑफ पाकिस्तान, दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर वहाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको गूगल क्लासरूम में डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें चैनल। जैसे यहाँ लेक्चर अपलोड होगा, मैं चैनल पे अपने अपलोड कर लूँगा, लॉकडाउन चैनल है, तो आपको वहाँ ये तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।